Assalamu alaikum and welcome back to the second episode of online coding sessions with Sir Ali. I'm hoping that you guys can see my screen. So first of all, what is the question for our coding is here. Write a menu driven program which is the following options. Number one is the factorial of a number. Number two is prime to check whether a number is prime or not. Number three is order even. Number four is exit. So I will prime basically I will discuss in front of me as prime is quite complicated topic, so it might not get clear in the online version. So first of all, what is a factorial of a number? Let's revise it quickly. So for example, if we have to take the factorial of 3, so what we'll do is just minus the number from its own and then multiply it with its own, like this. 3 2s are 6, so that's the factorial of 3. So like if we have to find the factorial of 4, so what we'll do, we have the number 4, we'll minus it from itself 3 and then multiply it with its own. Then again we have to minus from itself and then multiply it with minus and then multiply with its own. So 4 is 12, 12 is 24, 24. So what is the factorial of 4 is 24. Okay. So coming back to the solution of programming. Okay, so what we have to do is write a menu driven program. A menu driven program has multiple options. We have discussed it earlier. So factorial I have to tell it again and then coming back to the live coding. So what we'll do is first include two header files in our program. First of all, like standard input output.h, and then again we have to do is the console input.h. Okay, so console input output.h. Then what we have to do is we have to create 4 new variables over here, which will be the integer ones. Okay, so first of all, I is for the loop that we'll use in our program. Then what we'll do is use create one for the factorial and give it a initial value. Then we have to we create for the choice for switch case and number 4 for the num case. Okay, so here are the 4 variables. In the second stage, what we'll do, we'll ask the user for the number. First of all, we'll ask the user for the number. So printf enter your number. Okay, then we'll store it in a new variable. Okay, so here we go. Now what we'll do, we'll just printf 4 statements for the 4 different option functionalities that we are having in our program. So first of all, enter a number. Okay, now so we have to now show the 4 functionalities to a user. So enter the number, enter number 1, enter number 1 for factorial. So yeah, enter number 2 for prime checking, enter number 3 for odd even checking, and number 4 for the exit. ठीक है, अच्छा तो नंबर ले लिया. इसके बाद हमें जो है क्या करना है कि हमें ऑप्शन लेना है, तो उसके लिए हमने scanf लगाया. एंड व्हाट विल डू इज जस्ट take the choice from a user and store it into the choice variable. Okay, हमने इसको choice variable में store कर लिया. अब ये 2 काम हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हो गए हैं कि हमने नंबर भी ले लिया है, चॉइस भी ले ली है. अब हमें क्या करना है, जस्ट उसको अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस हमें उसको जो है उसका यूजर का डिजायर्ड काम करवा के देना है. ठीक है, 3 मेन स्टेजेस में काम ये प्रोग्राम बनेगा. पहला स्टेज मेन स्टेज, जैसे आपने नंबर लिया यूजर से. दूसरा मेन स्टेज कि आपने उसको ऑप्शंस दिखा के उससे ऑप्शन सेलेक्ट करवा लिया. नंबर 3 स्टेज में आपने उसको डिजायर्ड आउटपुट शो करवा दिया. ठीक है, तो स्विच लिखूंगा मैं पहले यहाँ स्विच.
ठीक है, स्विच। अब मुझे इसको इटरेट किस पे करवाना है, चॉइस पे, तो वी हैव टू राइट चॉइस ओवर हियर। ठीक है, पहला केस क्या हो सकता है कि हमारा जो यूजर है वो एंटर कर दे वैल्यू 1, लाइक उसको हम फैक्टोरियल दिखाना है हमें, तो व्हाट विल डू इज वी क्रिएट अ फॉर लूप ओवर हियर टू शो द फैक्टोरियल। व्हाट विल डू इज जस्ट राइट द फॉर लूप, देन वी हैव टू राइट i इज इक्वल्स टू num, यानी हमारे नंबर वेरिएबल में जो भी वैल्यू थी जो इसके ऊपर इसका जिसको उसको फैक्टोरियल चाहिए था, हमने उसको स्टोर करवाया i के अंदर। देन हमने इसको फॉर लूप की कंडीशन दी कि जब तक i बड़ा ना हो 1 से या बराबर ना हो जाए 1 से, 1 के या तो 1 के बराबर ना हो जाए i, जब तक चलते रहो। और दूसरी कंडीशन क्या दी कि जब तक जो है तुम बड़े रहो 1 से, क्योंकि हम इसको क्या करवाएंगे, एवरी टाइम वील डू इट माइनस ओवर हियर, क्योंकि हमें क्या फैक्टोरियल में, अगर मैं यहाँ पे वापस से अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ आऊँ और आप लोग इसको देख सकें, तो एवरी टाइम हमें क्या करना होता है, -1 कराना होता है और उससे दोबारा से मल्टीप्लाई कराना होता है। तो इससे बेहतर कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप यहाँ पे फॉर लूप यूज करें और क्विकली ये काम जो है फॉर लूप के थ्रू अगेन एंड अगेन करवाएं। ठीक है, अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक। ठीक है, सो व्हाट विल डू ओवर हियर, विल शो लाइक फैक्टोरियल के अंदर वी हैव टू स्टोर द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल इनटू i। ठीक है, फैक्टोरियल के अंदर फैक्टोरियल के से दोबारा i से मल्टीप्लाई कराई वैल्यू और उसके अंदर स्टोर करवा दी। ठीक है, अच्छा, अब फैक्टोरियल के अंदर न्यू वैल्यू है, अब हमने क्या करना है, यूजर को शो भी करानी वैल्यू, तो हम किस तरह लिखेंगे, द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर द फैक्टोरियल इज, ये भी इनफ रहेगा, द फैक्टोरियल इज %d, और उसके आगे आपने अपना फैक्टोरियल डाल दिया जो कि आपने अपने फैक्टोरियल के वेरिएबल में स्टोर कराया हुआ था। ठीक है, अब एक दफ़ा देख लेते हैं प्रोग्राम को चलाने से पहले। ठीक है, ओके, सेमी कॉलन्स आप लोगों ने देख लेना है कि सेमी कॉलन ईस्ट लाइन के आखिर में डले हुए हों। ठीक है, केस के आखिर में कॉलन आता है, ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी। ठीक है, ओके, आई गेस इट्स ओके, वी हैव टू रन इट। ओके, रन करके देखते हैं। एंटर योर नंबर, हमने डाल दिया यहाँ पे 5, एंटर दबाया, एंटर 1 फॉर द फैक्टोरियल, एंटर नंबर 2 फॉर द प्राइम नंबर। अच्छा, वन थिंग मोर, कि आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बिल्कुल सब लाइन से आ गया। एंटर नंबर फॉर फैक्टोरियल, एंटर नंबर 2 फॉर प्राइम चेकिंग, एंटर नंबर 3 फॉर ऑड इवन, एंटर नंबर 4 फॉर एक्सिट। प्रोग्राम सही चल रहा है बट थोड़ा सा नीट एंड क्लीन नहीं लग रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, \n यूज करेंगे, अभी बताता हूँ उसके बारे में भी। ठीक है, द फैक्टोरियल इज 120, फैक्टोरियल यहाँ पे हमारे पास शो हो गया। ठीक है, हमने क्या करा कि इससे बचने के लिए, ये जो थोड़ा सा डर्टी लग रहा था, इसको क्लीन करने के लिए हमने यहाँ पे \n लगा दिया एवरी टाइम, सो यहाँ पे ये डर्टी भी नहीं लगेगा। ठीक है, दोबारा से रन कर लेते हैं। सी, अब 5 का फैक्टोरियल ऐसा आ रहा है कि हमें पता नहीं है कि हम, क्योंकि उसको कैलकुलेट खुद से नहीं कर सकते, तो हम छोटा सा नंबर लेते हैं लाइक 3, तो 3 2 6 होता है, तो एंटर ये नंबर हमने 3 लिया, चेक करने के लिए कि प्रोग्राम सही भी चल रहा है या नहीं। देखें अब यहाँ पे ये थोड़ा सा क्लियर आ गया, थोड़ा सा बेहतर लगने लग गया पहले के मुकाबले में। सही है, एंटर नंबर 1 फॉर फैक्टोरियल, एंटर नंबर 2 फॉर प्राइम चेकिंग। सही है, अच्छा ये बहुत अभी भी नहीं लग रहा, आई नो दैट, अच्छा ये अभी बहुत नहीं लग रहा, बट पहले से बेहतर हो गया। ठीक है, इसको और बेहतर कैसे बनाना है वो नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा। एंटर नंबर 1 फॉर फैक्टोरियल, हमने 1 एंटर किया और देखा आ गया हमारा आंसर, द फैक्टोरियल इज 6। ठीक है, सो आई होप डैट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई नो कि वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इंशाल्लाह कल से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।